ये है अनसेट फीलिंग विद शाइंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड छोटा छोटा करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। What are those three things you have learned so far from your love? So, What I've learned is that number one, you be there for each other. You know, कुछ भी हो जाए, अगर आपको काम करना है एक साथ, if you want to grow together, be there for each other, it makes a difference. क्योंकि बहुत बार आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है यार, अब छोड़ देते हैं, let's just break up. That's very easy. Why don't you do something that's difficult? Because this is about love, and love is not jazzy all the times. You will see dark clouds and dark days as well. absolutely. Yes, so be there for that person. क्योंकि कोई perfect नहीं है. I am not perfect. I'm still not perfect. I think अगर मैं अभी भी प्यार में गिरूंगी, I will do some stupid shit. हम सब करते हैं. Yes, और मेरा पार्टनर भी करेगा, बट मुझे ये पता है कि ये कैसा भी हो, मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी. क्या तुम मेरे साथ रहोगे? That matters. This is what I've learned so far, that be there for each other. Because अब options बहुत है, लोग बहुत है. मैं यहाँ देखूँ मुझे 10 लड़के मिल जाएंगे, वहाँ देखूँ मुझे 5 मिल जाएंगे. But this person, I want to be with this person. Kind of person. So this is one thing. What are two other things that you have learned in love? Second would be that, again I would say it's the same thing जो मैंने नहीं किया है past में, communicate. Now Very important. Yeah, now I understand the importance of it. कि communicate and try to know each other. Assumptions मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि वो ही सब कुछ, पूरा खेल वही बिगाड़ देगा. Because everything will be here and you will just assume all the actions. Just ऐसे कुछ किया तो इसका मतलब ये है, वैसे कुछ किया तो उसका मतलब ये है. पूछो, बात करो. And third would be trust your person. Trust is so important. अगर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं तो हम हर चीज़ में शक करने लग जाते हैं. Absolutely. तो ट्रस्ट होना कोई भी रिलेशनशिप में आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करो, ये भी एक चीज़ है. जस्ट बिकॉज हाँ दैट पर्सन इज़ योर पर्सन एंड यू आर डेटिंग समवन डजंट मीन दैट आपको लिबर्टी मिल गई कि आप उससे भी कैसे भी ट्रीट करो. रिस्पेक्ट दैट पर्सन. आई हैव सीन रिलेशनशिप्स, खुशबू, जहाँ पे लोग बोलते हैं लोग रिलेशनशिप में हैं बट दे आर हर्टिंग ईच अदर. से इधर दे आर फिजिकली हिटिंग ईच अदर और फिजिकली अब्यूजिंग ईच अदर, एंड देन एंड ऑफ द डे बोलेंगे कि नहीं मुझे प्यार है. तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें बिना बात का अटैचमेंट है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दैट इज नॉट लव. यहाँ पे तुम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे उसको तुम कभी प्यार नहीं बोल सकते. हाँ, रिस्पेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट. और आप कुछ भी करने के बाद देन यू कम बैक एंड यू से दैट नहीं प्यार, व्हाट यू आर सेइंग. इवन आई हैव सीन दिस इन वन ऑफ माय फ्रेंड्स. बेसिकली दैट गाय यूज्ड टू बीट हर अप एंड देन बाद में आके उसे सॉरी बोल रहा था वो. That does not make so sense. attached. She was like, okay, नहीं this guy loves me. ऐसे उसे लगता है. उस टाइम पता था कि नहीं ये ऐसे क्यों कर रहा है. पर जब I'll tell you what happens psychologically also. If somebody is hurting you again and again and again and अचानक से एक दिन आके वो प्यार भी करने लग जाए ना, तो आपको जो अच्छा लगता है ना, it just boosts up. आपको इतना अच्छा लगेगा फिर. And you're like, no, this is love. Exactly. Don't deal with this shit. Just come out of it. Exactly. Thank you for saying that again because it is so important यार कि लोगों को सिर्फ क्या लगता है ना, हम लोग प्यार में हैं. That is not love again. End of the day. It's attachment. It is attachment. That is called a toxic attachment that you are in. Please come out of that if you are in that kind of a situation right now. Yes. Now with that, there's one more thing I would like to add. I'm so sorry. Please. So, also I would like to say I understand that you are being insecure and possessive, but don't do that. It's too much. अगर आप insecure और possessive बात पे हो रहे हो ना, relationship toxic होने वाला है. Exactly. I think that comes under trust वाला part. Yes. Absolutely. When you trust that person, let him flow and let her flow. You know, अगर आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, sit and talk to that person, ask एंड पूछो कि ऐसा आपको लग रहा है तो अभी क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए. पर आप रेस्ट्रिक्ट मत करके रखो, बिकॉज अगर आप वो कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को आधा तो वही किल कर रहे हो. बीइंग पोजेसिव एंड बीइंग इनसिक्योर इज़ वे टू मच. थोड़ा बहुत स्वीट और क्यूट लगता है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स टॉक्सिक. सो डोंट डू दैट. Exactly. Now with that, Khushbu, what are few myths about love first? About love? Yes. Myths about love is that कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि प्यार तो वही है जो वो मूवीज में देखते हैं. Exactly. सबसे बड़ा myth यही सबसे है. बड़ा प्यार तो यही है कि
हवा आने लग गई। कि यार मैं भी शाहरुख बहुत खान- रोमांटिक हूँ, मैं ये सोचती कि हूँ। शाहरुख खान पीछे वायलिन बजा रहा है, हाथ फैला दिया मैं भी है। सोचती हूँ, गाने सुनती हूँ तब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई नो द रियलिटी ऐसे नहीं होने वाला है। दिस इज जस्ट अ फीलिंग जो मैं सोचती हूँ विच विल मेक मी फील गुड, बट व्हेन आई एम विद दैट पर्सन आई नो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना हवाएं चलने वाली है, ना वायलिन बजने वाला है, और ना ये शाहरुख खान है और ना मैं काजोल हूँ। सो या जो आप मूवीज में देखते हो वो वैसा नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ। दिस इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट लव। Yes. जो मूवीज में तुम देखते हो वो वैसा नहीं है। अगर आप प्यार कर रहे हो उसमें डिफिकल्टीज आने ही वाली है, आने ही वाली है। आने ही वाली। दो लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, समहाउ वी आर मेंट टू क्रिएट रक्कस, और वो रिलेशनशिप में तो होगा ही। सो बी ओके एंड वर्क ऑन इट। ऐसे क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी का फुल वर्जन आपको अगर देखना है, फुल पॉडकास्ट देखना है, तो हमारे मेन चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं।